So let us continue with the last method, the general method. Okay, so I think till now we have covered two methods to find the particular integral of a given differential equation. We have started with the shortcut method. Okay, our first method is shortcut method. Then next is what? What is the second method? What is the second method to find the particular integral of a given differential equation? MVOP. MVOP, that is method of variation of parameters. Okay, and what are the conditions for this method? In which case you can apply this method of variation of parameter? Anyone? Second order. Okay, only for a second order linear differential equation. Okay, so this tricks helps to identify the correct method for given differential equation. Now today we will discuss the third method. Okay, that is the general method. Okay, so the first statement is this general method is depends on nature of phi of t. Okay, so now you can compare all these three methods together. Okay, when you consider a shortcut method is totally depend on your f of x. Right side में जो आपका function आता है, depending on that function you have to check whether we can apply a shortcut method for that particular given differential equation or not. Okay, so it is depend on only f of x. Method of variation of parameter is applicable only for a second order linear differential equation as far as our syllabus is concerned. So in general you have method of variation of parameter method, we have this method for third order linear differential equation also, but as far as our syllabus is concerned we have to consider this method only for a linear differential equation of second order. So this is for a second method, and third method, for general method you have to check only this phi of t. So if your phi of t is of this type d minus m or d plus m, you can call it as factor. Okay, अगर आपके पास ये factor आता है d minus a real number, real factor you can say. Okay, not for a complex factor. Okay, so if we have this factor d minus m or d plus m, in that case you can apply this general method. Okay, and how we find the particular integral using the general method. ओके, तो इस केस में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, जनरल मेथड के केस में आपका जो फाई ऑफ डी है वो इस फॉर्म में आ रहा है डी माइनस एम और डी प्लस एम, दैट साइन डजंट मैटर. ठीक है, सो डी माइनस एम और डी प्लस एम. ओके, इफ यू वांट टू कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट अस कंसिडर दिस डी माइनस 3 टाइम्स वाई इज इक्वल टू लाइक से ई रेस टू एक्स. अगर आपको यह डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप जनरल मेथड से जा सकते हो, क्योंकि आपको जो फाई ऑफ डी है वो किस फॉर्म में आ रहा है, डी माइनस एम के फॉर्म में आ रहा है या डी प्लस एम के फॉर्म में आ रहा है. ओके, ये तो समझ में आ रहा है सबको कि कैसे आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे फैक्टर चाहिए आपको, रियल फैक्टर है ना, डी माइनस एम वन डी माइनस एम टू लाइक दैट. यहाँ पे आपको फैक्टर चाहिए. एंड व्हाट इज द result, okay, or what is the particular integral in this case? So the formula for 1 upon d minus m f of x, okay, 1 upon d minus m f of x. फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट कंसिडर इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ जो भी m का साइन है, ओके, जो भी m का साइन है वो एज इट इज आपको ब्रैकेट के अंदर लेना है. सो e रेस टू दिस साइन, सो e रेस टू माइनस m x मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन f of x. ये जाएगा पूरा आपका इंटीग्रेशन के अंदर. और इसका जो अपोजिट साइन है वो फैक्टर आपको बाहर लेना है. इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट. सो ई रेस टू माइनस एम एक्स एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ दैट मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू प्लस एम एक्स. तो इसका जो भी अपोजिट साइन है वो आपको बाहर लेना है. सिमिलरली व्हेन वी हैव डी प्लस एम फैक्टर, ओके, इन दैट केस द सेम साइन, okay, the same sign you have to consider under this integral. So it become e raised to mx multiplied by f of x, and the opposite sign you have to consider outside to this integral, that become e raised to minus mx. Okay, so here this formula is only for a one linear factor. This is called a linear factor. So this is for only one linear factor. Okay, in a case where we have more than one linear factor, like say d minus m1 into d minus m2, अगर इस केस में आपको प्रॉब्लम जनरल मेथड से ही करना है, ये अगर सेम एग्जांपल मुझे यहाँ पे देखना है, सो कंसिडर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 टाइम्स वाई इज इक्वल टू से ई रेस टू एक्स. ठीक है, अगर ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस
मैं डायरेक्टली फैक्टराइजेशन ही देता हूँ, ये सिमिलर फैक्टराइजेशन हो रहा है, सो बेटर वे लेट अस कंसिडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस d-2 इंटू d-3 है ना. सो d-2 इंटू d-3 टाइम्स y इज इक्वल टू e रेज़ टू x. एक तो इस फॉर्म में होगा, या तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप देखते हो d² माइनस 5ud प्लस 9, या तो इस फॉर्म में होगा. ठीक है, सो दोनों केस में. तो ऐसे केसेस में आपके पास एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, d-2 इंटू d-2 इंटू d-3. ओके, सो इन दैट केस इफ़ यू वांट टू सॉल्व यूजिंग जनरल मेथड, तो आपको वहाँ पे एक तो 1 बाय 1 वो फैक्टर ऑपरेट करना होगा लाइक दिस. तो जैसे कि 1/d माइनस m2 पहले ऑपरेट करो f(x) के ऊपर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, उसको कंप्लीट करो एंड देन अगेन ऑपरेट इट ऑन द सेकंड फैक्टर 1/d माइनस m. ओके, और इसमें ये सीक्वेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहले d-m2 भी ऑपरेट कर सकते हो, आप पहले d-m1 भी ऑपरेट कर सकते हो. ओके, 1 बाय 1 ऑपरेट करते जा रहा है, क्योंकि आपके पास एट द एंड d-m के केस में ही फॉर्मूला है 1/d माइनस m f(x) और 1/d प्लस m f(x). दैट साइन डजंट मैटर. ठीक है, सो 1 बाय 1 ऑपरेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो. दैट इज वन वे. या आप इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके, है ना, ये आपको पता है 1/d minus m1 into d minus m2 can be considered in terms of its partial fraction. And what is that partial fraction? It is equal to a upon first factor d minus m1 plus b upon second factor. तो आप इसका partial fraction consider करके then you can operate it on f(x). तो फिर से वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 1/d minus m1 into f(x), 1/d minus m2 into f(x). फिर 1 by 1 फॉर्मूला यूज करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो. तो अगर एक से ज़्यादा फैक्टर आते हैं तो इन 1 by 1 ऑपरेट करके आप जा सकते हो, या आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कंसिडर करके इंडिविजुअली दोनों को सेपरेट करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, एट द एंड आपके पास एक ही फॉर्मूला है, ये सब कुछ एक ही फॉर्मूले पे चल रहा है. दिस इज जस्ट द सिंप्लीफिकेशन, ओके, या जनरलाइजेशन कैन से, जनरलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. ओके, इज दिस क्लियर? आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, आगे मैं क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सारी चीज़ें. ये फॉर्मूला क्लियरली समझ में आ गया सबको? 1/d माइनस m f(x) का फॉर्मूला क्या है? सेम साइन आपको इंटीग्रेशन के अंदर कंसिडर करना है, मल्टीप्लाई बाय f(x), इसका अपोजिट साइन या अपोजिट फैक्टर आपको बाहर कंसिडर करना है. इज दिस क्लियर? इसमें कुछ डाउट्स है? फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है सबको? एंड दिस इज ओनली फॉर अ रियल फैक्टर. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो फिर ये वर्क नहीं होगा. इज दिस क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, और ये जो फोर्थ रिजल्ट है ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. 1/d of f(x) is nothing but single integral, 1/d² means double integral, 1/d³ means triple integral, and so on. Okay, so you can remember directly from a definition of derivative that 1/derivative gives you integration. आप ऐसे भी याद रख सकते हो. So 1/d² gives you double integration, 1/d³ gives you triple integration. Okay, let us directly take one example. तो ही आपको यह समझ में आएगा कि why we have to go with this method only. Okay, या जनरल मेथड. आपको जनरल मेथड से ही क्यों जाना है वो आपको समझ में आ जाएगा. Okay, so consider this first example. So let me write in terms of d. So in solution, this can be written as d² plus 3d plus 2 टाइम्स y इज इक्वल टू e रेज़ टू x. ओके, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई करेक्ट मेथड. ओके, सो वी हैव नाउ 3 ऑप्शंस टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन. वन इज शॉर्टकट मेथड, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, एंड देन द थर्ड चॉइस इज जनरल मेथड. ओके, तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेथड से ये सॉल्व हो सकता है. ओके, कैन वी solve this example using shortcut method? Shortcut method से possible है क्या? Yes? Yes. Yes. Shortcut method से solve होगा. कौन सा रूल आप यूज करोगे? Case 1. For? Yeah. Case 1 is for e raised to x ना? या case 1 है. It is not possible to solve. Whether e raised to x is equal to e raised to x? No. These are totally different. यहाँ पे पावर में आप x लेना है या मल्टीप्लाई में सम नंबर 2x, 3x, 4x, 5x, 7x जो भी है, बट यहाँ पे पावर में एक्सपोनेंशियल आ रहा है. ओके, सो दिस आर नॉट इक्वल, सो यू कैनॉट अप्लाई केस 1 फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपको e रेज़ टू सम कांस्टेंट इनटू x के जैसे ही टर्म चाहिए
तभी ये होगा। यहाँ पे e रेस टू x है, therefore it is not possible। ओके, नेक्स्ट सेकंड मेथड से हो सकता है क्या? सेकंड मेथड में क्या कंडीशन है? वी वांट ओनली अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड से कभी पॉसिबल नहीं होगा। एंड जनरल मेथड में आपको बस फैक्टर चाहिए, रियल फैक्टर, तो जस्ट फैक्टराइज दिस। क्या है आने वाले इसके फैक्टर? d+1 d+2 d+1 d+2 टाइम्स y इज इक्वल टू e रेस टू x। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रियल फैक्टर आ रहे हैं, इट मीन्स यू कैन सॉल्व यूजिंग जनरल मेथड आल्सो। तो ये आपका डिसीजन है, इसके आगे दोनों में से कौन से मेथड से जाना है, बट राइट नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑन दिस जनरल मेथड, इसलिए मैं आपको ये जनरल मेथड से सॉल्व करके देने वाला हूँ। आप चाहो तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। ओके, so let's do it. So in solution, first calculate the complementary function. So consider the auxiliary equation. So m square plus 3m plus 2 is equal to 0, that is m plus 1 into m plus 2 is equal to 0. That gives me m is equal to -1 and -2. So what is my yc? क्या आने वाला है yc? e raised to minus x c1. Yes, and then c2 e raised to minus 2x. ओके, ये आई थिंक आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया। नाउ लेट अस कैलकुलेट yp, है ना। सो yp इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, है ना, इंटू e रेस टू x। करेक्ट क्या ये? इज दिस करेक्ट? yes sir अभी मैं जंप कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ आपकी क्लियरली समझ में आ रही है। ओके, राइट नाउ यू कैनॉट अप्लाई जनरल मेथड डायरेक्टली फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, आपको पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस कैन वी कंसिडर एज d+1 इंटू d+2 ओके e रेस टू x। ठीक है, हाँ। अभी आगे Partial fraction. ओके, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप जा सकते हो। देखते हैं कैसे होता है। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। सो 1 अपॉन d+1 इंटू d+2 इज इक्वल टू, इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा a अपॉन d+1 प्लस b अपॉन d+2। व्हाट इज a? 1 व्हाट इज b? आप -1। हाँ, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बट चलो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपके मेथड से ही करता हूँ। देयर आर मेनी वेज टू फाइंड दिस a एंड b। ओके, आप क्या करते हो? दिस न्यूमरेटर इज इक्वल टू, डू दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट a इंटू d+2 देन प्लस b इंटू d+1। ओके, तो अगर आपको a कैलकुलेट करना है तो इसको 0 करना होगा। सो व्हेन आई पुट d इक्वल टू -1 यू विल गेट हियर a इज इक्वल टू 1, है ना। एंड व्हेन आई पुट d इज इक्वल टू, इसको 0 करो आप, सो -2 अगर आप पुट करते हो, सो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? यस, व्हेन आई पुट d इक्वल टू -2 प्लस 1 इज -1, सो -b इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आता है वो आपका क्या आने वाला है? So it is equal to a means 1 upon d+1 minus 1 upon d+2 times e raised to x। अभी सेपरेट करो और मल्टीप्लाई करो। ओके, सो लेट मी डू इट हियर। So it is equal to 1 upon d+1 e raised to x minus 1 upon d+2 e raised to x. Now let us apply that rule. Okay, मैं आपको रिजल्ट फिर से लिख के दे रहा हूँ। ओके, रिजल्ट क्या है? 1 अपॉन d+m अगर आप लेते हो ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, पहले आपको एक इंटीग्रेशन का साइन देना है। ओके, e रेस टू, ये जो भी साइन है वो अंदर लेना है,
ई रेस टू एम एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन डी एक्स एंड इसका अपोजिट साइन बाहर लेना है. दिस इज दी रूल. ओके, जनरल मेथड का ये फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. कैन यू टेल मी फॉर फर्स्ट टर्म एनीवन क्या लिखना है बोलो. इंटीग्रेशन ऑफ यस ई रेस टू नंबर क्या है 1, सो 1 इंटू एक्स इज एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स. बाहर क्या लिखना है e raised to e raised to minus minus x. माइनस एक्स. ये हो गया फर्स्ट टर्म का सोल्यूशन. माइनस, नाउ टेल मी फॉर द सेकंड टर्म डायरेक्टली. e raised to minus 2 minus 2x e raised to 2x e raised to x dx. now how you solve this integral, क्या पुट करना होगा सॉल्व करने के लिए. e raised to x equals to t. हाँ, है ना, क्योंकि वो कॉमन दिखाई दे रहा है या उसका डेरिवेटिव वहीं पे आ रहा है. सो जस्ट पुट e raised to x is equal to t. That gives me e raised to x dx become dt. So it is equal to e raised to minus x. क्या मिलेगा, क्या लिखना है यहाँ पे बोल दो. e raised to x dx become dt. A to the power t into dt. Okay, very good. Minus e raised to minus 2x. यहाँ पे क्या लिखना है बोलो. इसमें से एक e raised to x जाएगा dt में, एक रहेगा T into a to the power t into dt. very good. Okay, now let's complete this. So e raised to minus x, इसका आने वाला e raised to t itself minus e raised to minus tx. इसका क्या आने वाला है, ये एलाइटिव रूल से भी कर सकते हो या आपने जो जनरलाइज रूल देखा है ना बाय पार्ट्स रूल का, उससे भी कर सकते हो. जिसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है उसको आपको सेकंड टर्म लेना है, u लेना है, कैसे भी. सो फर्स्ट फंक्शन कौन सा फर्स्ट लेना है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है. हाँ, सो दिस इज u, दिस इज v, है ना. सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस क्या होता है, Integration of derivative of first into integration of second. तो वो क्या आने वाला है डायरेक्टली e रेस टू टी आने वाला है ना. करेक्ट है. इससे वो रूल आप अभी भूल ही जाओ जो आपने 12th में यूज किया है ना. इट्स बेटर टू यूज दिस रूल ऑलवेज. ये आपने देखा है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, है ना. यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री एंड सो ऑन. ओके, तो पहला टर्म मेरा क्या था टी, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, नेक्स्ट आने वाला इसका डेरिवेटिव तो वो 1 है और इसका इंटीग्रेशन सेम होगा. ऐसे ही ना, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कंटिन्यू करना है, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन कंटिन्यू करना है. ठीक है. सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन से मेथड से जाना है, बट ये ही सबसे फास्ट आपको आंसर देगा. फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कंटिन्यू करो, सेकंड का इंटीग्रेशन कंटिन्यू करो अंटिल एंड अनलेस यू विल गेट जीरो. ओके, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस केस में कभी जीरो नहीं मिलने वाला, वहाँ पे आपको ये स्किप करना है. उस केस में चाहो तो आप अपने 12th का जो रूल है बाय पार्ट्स रूल, आप उससे जा सकते हो. ठीक है. सो एट द एंड जस्ट रिप्लेस टी बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू. टी की वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स, दैट बिकम द फाइनल आंसर. ठीक है. तो अभी मैं इरेज करने वाला हूँ एंड लेट मी शो यू हियर ऑन स्लाइड. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 किया है. चलो मैं आपको अल्टरनेटिव देता हूँ. यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 किया है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करने से अच्छा कि 1 बाय 1 ऑपरेट करो. तो पहले इसको ऑपरेट करो d+1 को, इसको पूरा सॉल्व करो. सो 1 अपॉन d+1 इंटू ई रेस टू एक्स, दैट गिव्स मी. हाँ, सो व्हाट इज दैट फार्मूला, अपोजिट साइन बाहर ई रेस टू एक्स इंटू दिस. सेम लॉजिक है, ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी पुट करो, you will get e raised to t dt, that is again e raised to t. फिर t को रिप्लेस करो बाय देयर ओरिजिनल वैल्यू विच इज e raised to x. तो ये हो गया आपका एक फैक्टर सॉल्व. कुछ नहीं है इसमें डिफरेंस, दोनों केसेस में सेम है. पार्शियल फ्रैक्शन से करो या ऐसे 1 बाय 1 ऑपरेट करते आप जा सकते हो. ठीक है. फिर एक और बार आपको इस पर अप्लाई करना है. तो जब आप इस पर अप्लाई करते हो तो क्या है फॉर्मूला, इसका अपोजिट साइन बाहर, सेम साइन अंदर, मल्टीप्लाई बाय दिस होल फंक्शन. और यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, e रेस टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बिकम e रेस टू x. इसको सॉल्व करो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. सो पुट e रेस टू x इक्वल टू t, है ना. सो इट बिकम अगेन e रेस टू t dt, उसका आएगा e रेस टू t. ठीक है. सो योर फाइनल आंसर इज दिस. ओके. इस वे से भी आप जा सकते हो या पार्शियल फ्रैक्शन करते हो तो वो पूरा सॉल्व होने के बाद आपको यही मिलने वाला है जो मैंने लास्ट में दिया. ठीक है. तो आप किसी भी मेथड से करो, बट ये
कुछ केसेस में पार्शियल फ्रैक्शन से जल्दी मिलता है, कुछ केसेस में इस मेथड से जल्दी मिलता है. सो इट विल वैरी एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल. ओके, डिपेंड ऑन एग्जाम्पल आपको थोड़ा बहुत डिसाइड करना पड़ता है कि पार्शियल फ्रैक्शन से जाना या डायरेक्टली ऑपरेट करना है. ठीक है, पहले आप डायरेक्टली ट्राई करो. अगर डायरेक्टली क्विकली मिल रहा है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड जस्ट ऐड वाई सी एंड वाई पी, दैट इज द फाइनल आंसर. एक और एग्जाम्पल है जो मैंने शायद यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से किया. ठीक है, सो लेट मी शो यू दैट पार्ट डायरेक्टली. हाँ, सो 1/d स्क्वायर प्लस d इंटू एफ ऑफ एक्स. सो इफ आई फैक्टराइज दिस इट गिव्स मी 1/d इंटू d प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस e रेज टू एक्स. ओके, अभी मैं यहाँ पे 1 by 1 ऑपरेट नहीं करने वाला. 1 by 1 ऑपरेट करने से मे भी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. आप देखो, आप ट्राई करके देखो, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी. तो इसलिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहा हूँ. बट अगर आपको इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द पार्शियल फ्रैक्शन, ऑलवेज गो विद द पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, ज़्यादा कुछ मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन है, कहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेट करना है. अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो पार्शियल फ्रैक्शन से, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से इतना कभी नॉन ट्रिवल नहीं होने वाला वो एग्जाम्पल. सो लेट मी जस्ट कंसिडर द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस. सो वो क्या होगा, 1/d माइनस 1/d प्लस 1. ओके, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये मैं मतलब ये आप पे छोड़ रहा हूँ. a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर, जस्ट कैलकुलेट a एंड b. a इज 1, b इज माइनस 1. फिर 1 by 1 ऑपरेट करो, है ना. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 1/d ऑफ दिस फंक्शन. हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/d? 1/d. What is the meaning of 1/d? It's integration directly, है ना. यहाँ पे जनरल मेथड यूज नहीं होगी, क्योंकि जनरल मतलब कर सकते हो बट एट द एंड वो वही है. ओके, जनरल मेथड में वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वो एट दैट क्या होगा, जस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस. ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो, उससे टाइम आपका सेव होगा. अगर आप इस केस में जनरल मेथड से जाते हो ना, आप चेक करो, d माइनस 0 है ना वहाँ पे ऑफ दिस फंक्शन. तो जनरल मेथड का क्या रूल है, ये सेम नंबर अंदर लेना है, मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन, सेम नंबर विद दिस साइन. अभी यहाँ साइन से कुछ इफेक्ट होगा नहीं, इसका अपोजिट साइन बाहर लेना है. बट e रेज़ टू 0 1 होता है, सो एट द एंड इट इज जस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखो, 1/d मीन्स इंटीग्रेशन. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, जनरल मेथड का फॉर्मूला आपको यूज करना है, सेम नंबर अंदर लेना है, अपोजिट साइन बाहर लेना है, मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन. ओके, ना पहले मुझे ये बोलो सेकंड. ओके, नीचे किया है क्या, नहीं किया. हाँ हाँ हाँ. नाउ फर्स्ट टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस सेकंड इंटीग्रल. इसको कैसे करोगे आप, पहले वो बोलो, हाउ यू सॉल्व दिस सेकंड इंटीग्रल. यस, सेकंड इंटीग्रल का आंसर क्या है, log of 1 plus e raised to x. वेरी गुड, क्योंकि डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है आपका, है ना. द डेरिवेटिव ऑफ 1 plus e raised to x इज देयर इन द न्यूमरेटर, देयरफॉर योर इंटीग्रल इज log ऑफ डिनोमिनेटर. तो इसका आंसर आने वाला है माइनस e raised to minus x log ऑफ डिनोमिनेटर. व्हाट अबाउट द फर्स्ट केस, इसमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव इज नॉट देयर इन द न्यूमरेटर, क्योंकि वहाँ पे 1 आ रहा है. तो क्या करना होगा, ये ऑलरेडी आपने बोला था लास्ट टाइम, डिवाइड e to the power x. हाँ, डिवाइड e to the power x. सो या e raised to x कॉमन लेके ऊपर शिफ्ट करो. ओके, सो इफ आई टेक e raised to x कॉमन, यू विल गेट e raised to x इन ब्रैकेट e raised to minus x plus 1. इसको ऊपर शिफ्ट करो, दैट गिव्स मी e raised to minus x अपॉन e raised to minus x plus 1 dx. ये नेक्स्ट पार्ट एज इट इज. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, Minus log of e raised to minus x plus 1. है ना, क्योंकि अब इस केस में जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है. ओके, माइनस e raised to minus x विच इज ऑलरेडी देयर इन द न्यूमरेटर, आपको बस माइनस एडजस्ट करना था. ठीक है, सो दैट गिव्स मी माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर माइनस दिस रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, लॉग ऑफ 1 plus e raised to x. ठीक है, तो ऐसे सिंपल इंटीग्रेशन से. यहाँ पे मैंने कुछ और मेथड से किया, यू कैन स्किप दिस. ठीक है, ये पुरानी पीपीटी है, ये यू कैन स्किप दिस, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है. ये इतना स्किप करो, है ना. माइनस एडजस्ट करके यू विल डायरेक्टली गेट माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एंड नेक्स्ट पार्ट एज इट इज. ठीक है, तो ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से किया.
आपको डायरेक्ट करना तो आप डायरेक्ट करो, इट डिपेंड ऑन यू कि आपको जहाँ पे कैलकुलेशन आपको सिंपल लग रहा है उस मेथड से आप जा सकते हो। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द पार्शियल फ्रैक्शन देन ऑलवेज गो विद द पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, बट कुछ केसेस में आपको मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि डायरेक्ट का बेनिफिट क्या होता है। ओके, डायरेक्ट के केस में क्या होता है, कभी कभी कैलकुलेशन आपका और भी सिंपल हो जाएगा। ओके, लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल, तो आपको इससे वो क्लियरली समझ में आएगा। मैं डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे लेके आता हूँ। या सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। नाउ यू टेल मी, वैसे पार्शियल से भी इतना डिफिकल्ट नहीं, इतना कुछ डिफिकल्ट होगा नहीं, बट व्हाट इज द बेनिफिट विद द डायरेक्ट अप्रोच? कैन एनीवन टेल मी? मैं अगर डायरेक्ट करता हूँ तो क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको? आपको क्या लग रहा है? अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे यहाँ पे डायरेक्ट करने से? Function will get maximum function will get cancelled. हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 1/d+2 अगर नीचे आता है, जब आप इसका फॉर्मूला यूज करते हो ना जनरल मेथड में, ये e⁻² अंदर जाने वाला है विद द फंक्शन, इसका अपोजिट साइन बाहर आने वाला है, तो e⁻² ये टोटल मल्टीप्लाई होगा इस फैक्टर से। अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो ये फंक्शन डायरेक्टली आपका कैंसिल होने वाला है, करेक्ट? सो इसलिए ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट करने से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपको जल्दी आंसर मिलेगा। मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि पार्शियल फ्रैक्शन में और इसमें एट देन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से मेथड से सिंपल जा रहा है। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहा है सॉल्व, गो विद द पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं हो रहा है देन ओनली यू कैन कंसिडर, यू कैन गो विद दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये 2 और ये e⁻²x और d+2 ये सिमिलर फैक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले d+2 1/d+2 पहले मैं इस फंक्शन पे ऑपरेट करने वाला हूँ। सो दैट गिव्स मी e⁻²x इंटीग्रेशन के अंदर अपोजिट साइन बाहर इनटू दिस होल फंक्शन एज इट इज। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट ओनली sec²x in bracket 1 + 2 tan x dx। now what is the integration of this? क्या है इसका इंटीग्रेशन, या कैसे करोगे? Substitute. हाँ, क्योंकि डेरिवेटिव और फंक्शन वहीं पे आपको दिखाई दे रहा है। सो व्हेन आई पुट tan x = t, sec²x dx बिकम dt। इतना याद रखो, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कौन से केस में आता है? जिस केस में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों इंटीग्रेशन में प्रेजेंट है। यहाँ पे tan x भी है वहाँ पे और उसका डेरिवेटिव भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, देयरफॉर वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। So just put tan x = t, that gives me sec²x dx = dt. So it become 1 + 2t dt। सिंपल इंटीग्रल है, कंप्लीट करो। सो t + t², t को ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करो, tan x + tan²x। सो नाउ दिस होल बिकम योर फंक्शन। फिर से 1/d+3 ऑपरेट करो। सो e⁻³ मल्टीप्लाई होगा, अपोजिट साइन बाहर आएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपको मिलेगा e⁻x ओनली। सो आई थिंक हियर, इसके आगे बोलो कैसे करोगे? इसमें थोड़े बहुत मैंने शायद एडजस्टमेंट की है, मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देयर इज वन रिजल्ट, ऐसा कुछ एक रिजल्ट है, याद है क्या आपको? Yes. है ना? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? e⁻x into f(x). हाँ, तो मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर डेरिवेटिव मुझे चाहिए तो मुझे tan² को रिप्लेस करना होगा। सो दिस tan² आई कैन राइट इट एज, लेट मी शो यू, sec²x - 1। ओके, नाउ टेल मी अ फंक्शन। अभी मुझे इसको ऐसे लिखना है, तो आप मुझे बोलो f(x) क्या है और f'(x) क्या है। ऐसे लिखना है इसको, बोलो टेल मी f(x) एंड टेल मी f'(x)। इस केस में f(x) tan x tan x -1 and f'(x) is sec²x। हाँ, tan x - 1 को एक ब्रैकेट में लेके आ जाओ, उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है? ऑब्वियसली sec²x आने वाला है। सो दिस सेम टर्म कैन बी रिटन एज e⁻x f(x) + f'(x)। ये अदरवाइज डिफिकल्ट होगा, या अगर आप ये रिजल्ट नहीं यूज करते तो ये इंटीग्रेशन आगे और डिफिकल्ट होगा। मैंने ऐसे एग्जांपल पीपीटी में कंसिडर किया ना जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कहीं पे ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक होगा। ओके, सो इफ आई यूज दिस रिजल्ट, okay, with the same formula we will directly get your answer as e⁻x f(x), that is tan x - 1। so ideally within 2-3 steps you will get this final answer। ठीक है,
ओके, एमसीक्यूज में मैं वैसे फिर से ये करने वाला हूँ रिपीट, यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है तो थोड़े बहुत आपको लेंदी लग सकते हैं, बट ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ हो रहा है। और एमसीक्यूज अगर आप इसके ऊपर देखते हो तो इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आने वाले कैलकुलेट दिस d-3 टाइम्स y इज इक्वल टू e raised to x। अब ये शॉर्टकट मेथड से होगा नहीं, करेक्ट, यू कैनॉट गो विथ शॉर्टकट मेथड क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन शॉर्टकट मेथड में नहीं है, या d-1 भी अगर लेता हो और ट्रिवियल करना है तो। सेकंड, ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो आपको इसको जनरल मेथड से ही करना होगा। सो योर yp इज इक्वल टू 1/d-1 e raised to x। आपके पास फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला क्या है, ये सेम साइन आपको अंदर लेना है, e raised to x dx, इसका अपोजिट साइन बाहर लेना है और इसको कंप्लीट करना है। जस्ट पुट e raised to x इक्वल टू t, आपको ये इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आने वाले। क्लियर हो गया टॉपिक? एनी डाउट इन द जनरल मेथड? एट देन यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला, 1/d-m f of x का, which is equal to e raised to mx e raised to minus mx into f of x dx। just remember this formula, ठीक है? any doubt in this topic जनरल मेथड? कुछ प्रॉब्लम है इसमें या कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है? बोलो यस, yes or no? any doubt in this topic? बोलो। बोलो जल्दी, क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं है सारे? Yes, sir. आई गॉट ओनली वन रिप्लाई। बाकी स्टूडेंट कहाँ पे, सो गए क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं या फिर से रिपीट करना है? बोलो। Yes, sir. ओके, ठीक है। सो ओनली 3 एग्जाम्पल्स आर देयर, और जो मैंने डिफिकल्ट ही ली है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट टू मतलब थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादातर इक्वेशन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बट इफ़ यू सी दी एमसीक्यूज, दोज आर ट्रिवियल। ऑलरेडी मैंने शायद शीट आपसे शेयर की है एमसीक्यूज की, आप उसमें चेक करो जनरल मेथड की क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा ट्रिवियल क्वेश्चन है वो, तो 100% आपको वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ लेट अस टेक द लास्ट टॉपिक from this unit, okay, that is actually the application of this linear differential equation in electric circuit, okay. For a first order differential equation, already in the second course of mathematics, that is multivariate calculus, okay, in that unit I think you already consider this this electric circuit application, है ना, for first order differential equation। और उस टाइम पे भी शायद आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही यूज़ किया था, है ना, यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आपने करंट कैलकुलेट किया था, चार्ज कैलकुलेट किया था, ऐसे क्वेश्चंस आपने वहाँ पे देखे थे। नाउ इन दिस सिलेबस वी हैव कंसिडर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, ओके। तो ऑर्डर 2 का होगा, ऑर्डर 3 का होगा, ओके, ऑर्डर ग्रेटर देन ऑर्डर 1, ओके। ऐसे सारे आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाले। So in a similar approach to that electric circuit, okay, what we have learned in multivariate calculus, सेम अप्रोच से अभी हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बस इतना ही चेंज होगा, वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था आपके पास, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इतना ही चेंज, ठीक है। सो थियरी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट, बट एक और बार मैं रिपीट करता हूँ। सो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट containing inductance L, correct, resistance R, capacitance C. So this is your electric circuit, and battery EMF E. So this is your electric circuit which contain resistors, inductance, capacitance, and the battery. Okay, we all know these three results. Okay, these three results are important for the Kirchhoff's law for the electric circuit. Okay, so let me read one more time. The voltage drop across the resistance. What is the voltage drop across resistance? Yes, it is. What is the voltage drop across resistance? It is equal to I into R. IR. है ना? It is directly proportional to the current passing through the resistor. That is VR is equal to IR or RI. कैसे भी.
what is the voltage drop across inductance? So that result is what? The voltage drop across an inductor is proportional to the instantaneous time, the rate of change of current, okay, or it is directly proportional to the rate of change of current with respect to time, that is di by dt. So that gives me VL is equal to L into di by dt. It is directly proportional to rate of change of current with respect to time. VR is directly proportional to the current passing through the resistor, and third is what? The voltage drop across capacitance. It is directly proportional to the charge, okay. So that gives me VC is equal to Q by C, okay. So these are the three formulas. I think you all are aware about this, okay. आपसे मेरे से ज़्यादा आपको इसका नॉलेज होगा, ठीक है. सो ये मैं एज्यूम करके जा रहा हूँ यू हैव अ बेस ऑफ दिस थ्री formulas: the voltage drop across resistance, which is IR, voltage drop across inductance, which is L into di by dt, and the voltage drop across capacitance, which is equal to Q by C. Now let me write, or you can tell me what is the Kirchhoff law. ये ऑलरेडी आपका हो चुका है ये पूरा पार्ट या मल्टीवेरिएट कैलकुलस में, सेम ही लॉजिक है. व्हाट इज द किरचॉफ लॉ फॉर दिस सर्किट? कैन एनीवन टेल मी? यस, व्हाट इज द किरचॉफ लॉ फॉर दिस सर्किट? The total or the resultant electromotive force E is equal to what? Is equal to what? Sum of the what? Voltage drop across each resistor. Okay, sum of the voltage drop across each node. Correct? So what is that? बोलो. E is equal to, yes anyone? क्या क्या लिखना है बोलो. E is equal to, yes, E is equal to what is the voltage drop across inductance? L upon di upon dt. L into di by dt plus voltage drop across capacitance Q by C, voltage drop across resistance I. करेक्ट. तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाता है डायरेक्टली फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ. बट मुझे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करना है, जो आपको मैंने पहले ही बोला था. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? Rate of flow of charges. Okay, that is dq by dt. Okay, this is the definition of current. So if I use this definition here, can you tell me what is the differential equation then? E is equal to क्या मिलेगा आपको? L. क्या लिखना है यहाँ पे? D square Q upon dt. D square Q by dt plus Q by C as it is. पहले ये टर्म लिखता हूँ मैं. I की वैल्यू क्या है? dq by dt into R plus this Q by C. Correct? Now let us divide this whole equation by L, क्योंकि आपको पता है सेकंड ऑर्डर का जो कोएफिशिएंट आपको उसको 1 सेट करना है. सो लेट अस डिवाइड इट बाय L. सो दैट गिव्स मी d square Q by dt square plus 1 upon R by L. Correct? R by L dq by dt plus Q by LC is equal to E by L. क्या दिखाई दे रहा है आपको ये? What is this? Second order differential equation. Linear differential equation. Okay, second order linear differential equation in Q. ये सेम ही मैंने आगे एक्सप्लेन किया. This is the Kirchhoff law. The voltage supplied, that is EMF, is equal to sum of all the voltage drop. So voltage drop across inductance plus resistance plus capacitance is equal to the resultant electromotive force, है ना. So just replace this I, okay, as we know the definition of current, which is dq by dt. So if I replace this, you will get L into d2q by dt square plus R into dq by dt plus q by c equal to E. Divide this by L, you will get a linear differential equation in Q. ये आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 1 और 2 मार्क्स के लिए. ठीक है, ये डेफिनेशन. व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? ओके, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस LCR सर्किट, ये आपको आ सकता है. ठीक है, तो पहले ये एक इक्वेशन आपको याद रखना है एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न. एंड नाउ लेट मी टेक वन सिंपल एग्जांपल ऑन दिस पार्ट. ठीक है,
एन इंडक्टर ऑफ 0.5 हेनरीज, मैं सॉल्व करके देने वाला. सो व्हाट इज गिवन, L is equal to 0.5. It's connected in a series with resistor, so resistance is equal to 6 ohm. Okay, a capacitor 0.02 farad. A generator having alternative voltage is given by, so E is equal to, so this voltage is depend on T, 24 sine of 10t, and a switch K. Find the charge and current at a time t. तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है आपको, Q एंड करंट और R, ठीक है, चार्ज एंड करंट at a time t if the charge on the capacitor is 0 when switch K is closed at time t equal to 0. This is the initial condition. Initially the charge is 0 and current is also 0. Okay, so which circuit is given? We have given a LCR circuit, so let us draw this. Inductance, capacitance, then resistance and battery. Okay, so the value of resistance R is equal to 6, sorry, inductance, the value of resistance R is equal to 6, inductance is equal to 0.5, capacitance is equal to 0.02 and E is equal to 24 sine 10t. Okay, now so by Kirchhoff's law, बोलो, by Kirchhoff's law, yes, क्या मिलने वाला है आपको रिजल्ट, the sum of all the voltage drop, the sum of all the voltage drop, L into di by dt plus resistance के across plus capacitance के across is equal to resultant electromotive force. Okay, now put all these values here. This you will directly get it from Kirchhoff's law. Okay, if you want you can replace this I with the charge, क्योंकि आपको चार्ज भी कैलकुलेट करना ही है, ठीक है. So this can be written as L into या आप ठीक है, L into d2q by dt square plus dq by dt into R plus q by c is equal to E. कुछ नहीं किया मैंने, बस फॉर्मूला यूज़ किया. ओके, नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज. सो L की वैल्यू क्या है, 0.5. लेट मी राइट इट ऑन नेक्स्ट पेज. आप ये याद रखो और मुझे बोलो क्या क्या वैल्यूज है. ओके, बोलो 0.5 L की वैल्यू d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस क्या था, yes, R into dq by dt. What is the value of R? R is 6. So 6 dq by dt plus next क्या है, q by c. Okay, so what is the value of c? C is 0.02. So q by c 0.02 is equal to ये वैल्यू क्या थी, व्हाट इज ऑन RHS, आई थिंक 24 ना, Sine of 10t. साइन ऑफ 10t. इज दिस करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? मैंने एज इट इज किरचॉफ लॉ अप्लाई करके जो भी गिवन वैल्यूज है एज इट इज उसमें पुट किए, बाकी कुछ नहीं. नाउ लेट अस डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 0.5. ओके, और सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट, 1 by 2, multiply by 2. So that gives me d2q upon dt square. आप बोल दो सिंप्लीफिकेशन क्या आने वाला है यहाँ पे, 0.5 से डिवाइड करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट इज दिस वैल्यू, 12. आगे ये 1/0.02 मीन्स 100. ठीक, 100 ना, करेक्ट है ये. आप चेक करो अगर मिस्टेक होती तो. यहाँ पे क्या आने वाला है, 48 साइन ऑफ 10t. आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा.
ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके आगे आप यूनिट या जो भी आपने थ्योरी लर्न किया वो आप यूज कर सकते हो. सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस 12d प्लस 100 टाइम्स q is equal to 48 sine of 10t. Now first calculate complementary function. So what is the complementary function? To find complementary function, consider auxiliary equation. Okay, what is your auxiliary equation? M square plus 12m plus 100 equal to 0. Can anyone tell me what are the roots of this? Calculate karo calcium, tell me these roots. Tell me quickly, we have very less time. -6 plus -8 है. Okay, -6 plus or minus 8i. Now tell me complementary function, yc. yc नहीं लिखना है. क्या आएगा yc के जगह पे? क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? QC है ना. y के जगह पे यहाँ पे q है. सो लेट मी राइट QC. अब ये ओके, इससे कंफ्यूजन होगा, नहीं तो C यूज़ किया है, सो इट्स बेटर. लेट मी राइट एट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. बोलो क्या है, बोलो क्या लिखना है, बोलो आप. e raised to -6x. x आएगा क्या यहाँ पे? x आएगा क्या? No. dy बाई dx होता है ना, तो y के जगह पे q है इस क्वेश्चन में, और x के जगह पे क्या है? T. t. क्या लिखना है? e raised to -6t देन c1 cos 8t प्लस c2 sin 8t. करेक्ट है ये? कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर हो गया सबको? One more page. Now next. So complementary हो गया. Let us calculate particular integral. Okay. Particular integral आपका क्या होगा? 1 upon क्या है phi of d? यहाँ पे लिखा है d square plus 12d plus 100. d square plus 12d plus 100. What is the function? Function क्या था? 48 ना, sin of 10t. ठीक है, अब देखो फिर से 48 sin of 10t. कॉम्प्लीमेंट्री हमने कैलकुलेट किया. ओके, नाउ टेल मी. अभी आपको बोलना है आगे सारा पार्ट, ये ऑलरेडी हो चुका है सारी चीज़ें. यस, टेल मी द नेक्स्ट स्टेप. b square equals to -100. Very good. Okay, in case of sine function you have to replace d square by minus a square. 48 कांस्टेंट बाहर लेके आता हो एंड d स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा -100 प्लस 12d प्लस 100 इंटू साइन ऑफ 10t. ओके, सो दिस 100 विल गेट कैंसल एंड ये क्या आएगा? 48 अपॉन 12. क्या लिखना होगा वहाँ पे मुझे फाइनली? 4/d. ओके, सो 4/d साइन ऑफ 10t. Okay, 4 is again constant. 1 upon d of sin t means what? 1 upon d means integration. And what is that integration? Sin का integration क्या आता है? Minus cos upon. Minus cos 10t upon 10. Correct? So the final answer is -4/10 cos of 10t. ठीक है, दिस इज माई पर्टिकुलर इंटीग्रल. प्रीवियस स्लाइड पे कॉम्प्लीमेंट्री है, -6 + 8. ओके, नाउ लेट मी राइट द होल solution. Okay, so therefore जनरल सॉल्यूशन जो Q था इज इक्वल टू, लिख रहा हूँ QC प्लस QP. सो विट इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज QC? क्या था वो? e raised to -8t C1 सॉरी 6 ना, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, 6t cos of 8t
प्लस C2 साइन ऑफ 8t, और पर्टिकुलर क्या आ रहा था हमारा, व्हाट इज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर क्या था, minus cos by 10 10 cos t of by 5 10t 10t ना, चेक करता हूँ एक बार अगर कुछ रॉन्ग होता है तो, -4/10 cos of 10t, ठीक है। हाँ ओके, आगे आगे बोलो क्या करोगे। इज दिस योर फाइनल आंसर, कैन वी टेक दिस एज Q, इज दिस योर फाइनल आंसर? No. No. What is the problem with this? These two values are unknown. आपको चाहिए था Q in terms of T। आप क्वेश्चन फिर से देखो, उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q in terms of T, है ना। सो राइट नाउ दिस C1 एंड C2 इज अननोन, सो टू फाइंड दिस अननोन आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, यूज इनिशियल कंडीशन, ये आपने किया है वहां पे एप्लीकेशन में, to find C1 and C2. What is your initial condition? At time t equal to 0, okay, both charge and current are 0. Charge is also 0, current is also 0. चालू आहे 1:30 पर्यंत। So at time t equal to 0, Q equal to 0, I is equal to 0. Okay. Now if I use this condition, tell me the first equation. Tell me the first equation. 0 equal to what? Yes. 0 equal to what? बोलो। या आप डायरेक्टली 2/5 कर सकते हो इसकी जगह पे। हाँ यस, C1. हाँ, e raised to 0 इज अगेन 1, C1 देन, और ये भी 0 होगा, T0 साइन 0, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2/5, करेक्ट। सो व्हाट दिस गिव्स मी, C1 इज इक्वल टू 2/5। हाँ ये तो चलो आपको समझ में आ जाएगा। हाउ यू फाइंड C2, दिस इज माई क्वेश्चन, C2 कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो। C1 आपने कैलकुलेट किया डायरेक्टली इनिशियल कंडीशन से, हाउ यू कैलकुलेट C2, बोलो। इनिशियल कंडीशन का यूज करना है, सारी चीज आपके सामने है। यू टेल मी हाउ यू फाइंड C2, बोलो। एक कंडीशन मैंने यूज की t इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0, I0 T0 यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, यस, करंट कैसे पिक्चर में लेके आओ मैं यहाँ पे, हाउ आई गेट करंट फ्रॉम द Q, by डिफरेंशिएटिंग ना, बिकॉज वी नो दैट I इज इक्वल टू dq बाई dt। मेरे पास I के लिए कंडीशन है I0 एंड t इक्वल टू 0, ओके। सो इफ आई वांट टू यूज द कंडीशन, इनिशियल कंडीशन फॉर करंट, मुझे इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो इफ आई डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू t, ओके, सो आई एम डिफरेंशिएटिंग I is equal to, that is nothing but dq by dt is equal to, now let us take the derivative quickly, okay, first function derivative of second which is minus 8c1 sine of 8t plus 8c2 cos of 8t plus second into derivative of first, so c1 cos of 8t plus c2 sine of 8t into derivative of this which is minus 6 e raised to minus 6t माइनस दिस 2/5, इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, माइनस 10 इंटू साइन ऑफ 10t। कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव, देखने में आपको लेंदी दिखाई दे रहा होगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव है। ओके, नाउ इफ आई पुट हियर t0 एंड I0, व्हाट दिस गिव्स मी, एनीवन,
इसमें अभी आप पुट करो, लेफ्ट साइड में 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन के सारे टर्म 0 आने वाले, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, e raised to 0 इज 0, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ओनली फर्स्ट इसमें 8 इंटू C2 बिकॉज cos 0 इज 1, सेकंड केस में ये टर्म रहेगा वहाँ पे प्लस, हाँ यहाँ पे भी e raised to 0 इज 1, सो -6 टाइम्स C1, करेक्ट है ये, -6 टाइम्स C1, बाकी सारे टर्म 0 आ जाएंगे। इज दिस करेक्ट? जो भी मैंने लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं, आप बोलो, इज दिस करेक्ट और नॉट? इज दिस करेक्ट और नॉट? चेक द कैलकुलेशन, करेक्ट है क्या ये? Yes, sir. Okay, and now put the value of C1. C1 is 2 by 5. So what is the value of C2? Which is equal to 8. आप कैंसिल भी कर सकते थे यहाँ पे, -6 इंटू 2 by 5. So tell me finally what is your C2? 3/10. क्या आ रहा है? 3/10. ठीक है, हो गया. Now just put the value of C1 and C2 here in this equation star, and that will be your final answer. ये एप्लीकेशन है, ओके. और इस पे क्वेश्चंस आपको इसको स्प्लिट करके आने वाले, ठीक है. मैंने एक पूरा इन डिटेल में क्वेश्चन लिया, बट आपको मे बी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट आ सकता है, या आपको C1 C2 कैलकुलेशन करने का भी पार्ट आ सकता है ना. क्वेश्चन एज इट इज़ गिवन होगा, मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, ये स्टेप भी आपको मैं दूंगा. यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, ये भी पार्ट आपको एग्जाम में आ सकता है. या just to write the complementary function, just to write the particular integral. ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन इस टॉपिक पे आने वाले हैं. तो ये जो एक क्वेश्चन मैंने जो लिया है, इसको ही आपको स्प्लिट करके याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है लास्ट टॉपिक के ऊपर. डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आ सकता है, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री कैलकुलेट करना है, या तो पर्टिकुलर कैलकुलेट करना है, या आपको मैं डायरेक्टली सोल्यूशन दूंगा, आपको C1 एंड C2 की वैल्यू मुझे बोलनी, या जस्ट टेल मी द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2. इतने ही क्वेश्चंस, इतने पॉसिबल क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं. आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 1. लास्ट 2 टॉपिक में स्पेशली इस टॉपिक के आपके पास MCQs नहीं है, तो ये जो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, जस्ट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, ओके. बस वैल्यू चेंज होगी और उस अकॉर्डिंगली आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ऑन दिस लास्ट टॉपिक, ओके. एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? यस.